I would now request the two Prime Ministers to come to the podium, please. Excellencies, we will witness the exchange of 6 documents अब between हम India and भारत Japan. और जापान के बीच 6 दस्तावेजों के आदान प्रदान के साक्षी in the field of cyber security for information sharing, capacity building programs, सहयोग ज्ञापन यह सूचना साझाकरण क्षमता निर्माण के लिए है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। इसका आदान प्रदान भारत जापान की ओर से श्री सुजुकी सातोशी जो कि भारत आए जापान के राजदूत हैं, और भारत की ओर से श्री हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव। अगला जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी 20,400 crores for projects in connectivity, water supply and sewerage, horticulture, healthcare and biodiversity conservation in various states. This will be exchanged from the Japanese side by His Excellency Suzuki Satoshi, Ambassador of Japan to India, and on the Indian side by Shri Ajay Seth, Secretary Department of Economic Affairs. Next, we have diplomatic notes for amendment in Annex 2 of India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, and protocol for amendment of Article 7 of Implementing Agreement under India-Japan CEPA. This will be exchanged from the Japanese side by His Excellency Suzuki Satoshi and Shri BVR Subramaniam, Commerce Secretary of India. Next, we have a Memorandum of Cooperation on Decentralized Domestic Wastewater Management. This will be exchanged on the Japanese side by His Excellency Suzuki Satoshi, the Ambassador of Japan to India, and Shri Pankaj Kumar, Secretary in the Ministry of Jal Shakti. Number 5 is India-Japan Industrial Competitiveness Partnership Roadmap. This will be signed on the Japanese side by Mr. Hirose Naoshi, Vice Minister for International Affairs, Ministry of Economy, Trade and Industry, and on the Indian side by Shri Anurag Jain, Secretary Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Number 6 is a Memorandum of Cooperation on Sustainable Urban Development. This will be signed on the Japanese side by Mr. Okanishi Yasuhiro, Vice Minister for International Affairs, Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism, and on the Indian side by Shri Manoj Joshi, Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs. Ladies and gentlemen, apart from these agreements, the outcomes of this summit include launch of Clean Energy Partnership for cooperation in areas such as electric vehicles, storage systems, including batteries, electric vehicle charging infrastructure, development of solar energy, hydrogen, ammonia, etc. Number 2 is an announcement of 5 trillion yen, which translates into 3,20,000 crore rupees investment target. This follows from the Investment Promotion Partnership of 2014, when both sides had agreed for Japanese yen 3.5 trillion investment during 2014-2019. Number 3 is a Sustainable Development Initiative for the northeastern region of India, including initiative for strengthening bamboo value chain. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Distinguished Prime Ministers, members of both delegation, friends of the media, we will now begin with the press statements. May I now request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to make his statement. Sir, the floor is yours. Your Excellency. Your Excellency, Prime Minister Kishida, distinguished delegates, good evening. It is a great pleasure for me to extend I express
in the earthquake that took place a few days ago. Friends, Prime Minister Kishida has been an old friend of India. As Foreign Minister, he has visited India several times, and I have had the opportunity to exchange views with him. Over the last several years, the India-Japan ग्लोबल special- पार्टनरशिप में जो अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली, उसमें प्रधानमंत्री किशिदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की हमारी समिट का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण समय हुआ है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयां तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। फ्रेंड्स, भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री किशिदा और उनके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Kishida Fumio, Prime Minister of Japan, to make his press statement. Excellency, the floor is yours. はい、ナマスカー、今回、日印国交樹立70周年の節目に、総理大臣就任後初めての二国間訪問先としてインドを訪問することができ、大変嬉しく思っています。そしてमोदी首相とमहत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंधों का ये 70वां वर्षगांठ है और मैंने विश्वास के संबंधों को और अधिक गहरा किया है। एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर हमने बहुत ही गहन चर्चा करी है एक दूसरे के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उन्होंने हमें बहुत ही विनम्र रूप से हमें संवेदना व्यक्त की है जापान में आए भूकंप के लिए। आपके विनम्र शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त पूरा विश्व जो है यह कई घटनाओं की वजह से बहुत ही हिल गया है क्योंकि कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं विश्व में और भारत और जापान हम कई मूल्य साझा करते हैं जैसे कि लोकतंत्र, कानून का शासन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम निकट साझेदारी करें और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से और कई अन्य मंचों में जैसे कि क्वाड मंच प्रारूप में, ताकि हमें खुला और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित कर सकें। हमने विचारों का आदान प्रदान किया और एक छोटे समूह में भी, सीमित सत्र में भी हमने बातचीत करी एक दूसरे के साथ। यूक्रेन की में स्थिति के बारे में भी हमने चर्चा की। रूस का जो आक्रमण है यूक्रेन में, ये बहुत ही गंभीर घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जड़ों को हिला देता है। तो हमें बहुत ही संकल्पवान रूप से प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत है। मैंने अपने सारे विचार व्यक्त किए प्रधानमंत्री मोदी जी को। मैंने कहा कि जो भी एक पक्षीय प्रयास किए जा रहे हैं यथास्थिति को बदलने के लिए बल के प्रयोग से, इनको कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी जी और मैं, हमने इस बात की पुष्टि करी कि हमें शांतिपूर्ण समाधान की ज़रूरत है सभी संघर्षों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर। और इन घटनाक्रमों की वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोनों देश अपने प्रयास बढ़ाएं एक खुला और मुक्त हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए। जापान भारत के साथ मिलकर इसके लिए अनुरोध करता रहेगा कि युद्ध विराम हो जाए और बातचीत के द्वारा इस संघर्ष का समाधान दिया जाए। और साथ में वह यूक्रेन और उसके जो आसपास के जो देश हैं उन सभी को हम समर्थन देते रहेंगे। जापान ने $10 बिलियन की आपात सहायता की घोषणा करी है। माफ करिए, $100 मिलियन की मानवीयता सहायता की घोषणा करी है यूक्रेन और बाकी आसपास के देशों के लिए। और हम और भी अतिरिक्त सहायता देंगे। हम किसी भी प्रयास को जो कि अकेले किसी यथास्थिति को बदलने का जो बल के द्वारा प्रयास हो, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और हम दोनों ने ये कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे मुद्दे जिसमें उत्तर कोरिया का मुद्दा भी शामिल है पर मिलकर काम करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने हमें अबडक्शन के मामले में भी पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। हमें
हमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय एक व्यवस्था की ओर काम करना होगा और इसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी सुधार लाने होंगे और बदलाव लाने होंगे ताकि हम ऐसा एक विश्व तैयार कर सकें जहां जो खासतौर पर परमाणु शस्त्रों से मुक्त हो। और इसके लिए हम भारत के साथ भी काम करते रहेंगे कि हम अपना सहयोग को और भी बढ़ाएं और हम चाहेंगे कि जापान भारत आक्सा के जो कि भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास का संयुक्त प्रयास है, उसमें भी हम भारत के साथ सहयोग करते रहेंगे और उसको और आगे ले जाएंगे। हम अगली जापान भारत 2+2 बैठक जो है वो जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। और हम साइबर सिक्योरिटी में जो सहयोग ज्ञापन का जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका हम स्वागत करते हैं और हम आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने के लिए और बाकी मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करते रहेंगे। भारत हमारा जापान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है, खासतौर पर नई पूंजीवाद के स्तर पर। और हमने घोषणा करी है कि अगले 5 सालों में हम 5 बिलियन येन का निवेश भारत में करेंगे और हम अपने सहयोग को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम जिन अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 महामारी के कारण बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सहायता प्रदान करें और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। और इसमें हम ऊर्जा ट्रांजिशन या ऊर्जा के और क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि भारत और जापान के जो सहयोग है वो भी हम उसका भी प्रगाढ़ करेंगे और हम ऊर्जा क्षेत्र में खासतौर पर अपने सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उसके द्वारा हम भारत में सतत विकास के लिए काम करते रहेंगे। भारत जापान की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी हम अपना सहयोग को और बढ़ाएंगे और खासतौर पर हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और हमें बहुत खुशी है कि जापानी सेब अब भारत में आसानी से मिल पाएंगे और जो भी और हमें बहुत खुशी है कि और साथ में भारत के आम जो है वो अब जापान में मिल पाएंगे और हमें बहुत खुशी है कि हम एक दूसरे के फल का मजा उठा पाएंगे। हम अपने कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर हम इसको मिलकर इसको मनाएंगे और इससे हम लोगों के बीच में खासतौर पर युवा और जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बीच में आदान प्रदान को हम और बढ़ावा देंगे ताकि इससे हमारे लोगों के बीच में भी जो संबंध है वो और ज़्यादा सुदृढ़ बने। मुझे बहुत खुशी है कि और मैं आशा करता हूँ कि आगे से जो हमारे शिखर सम्मेलन है, जो हमारे प्रधानमंत्रियों के बीच में एक दूसरे के देश में यात्राएं होती हैं, उसकी कड़ी जो है वो हम फिर से बहाल कर सके और हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें और काम करते रहें। मैं प्रधानमंत्री मोदी को क्वाड समिट में जो कि टोक्यो में जिसका सम्मेलन हो रहा है उसके लिए मदद करता हूँ। धन्यवाद। इन्होंने हिंदी में बोला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रेस वक्तव्य समाप्त होता है और बहुत आप बैठे रहिए जब तक कि प्रधानमंत्री यहाँ से पधार मिले।